ವಿದ್ಯಾಧಿ ದೇವತೆಯಾದ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನೆನಪಿಡುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂತ ನಾಮಕರಣವಾಗಿ ಅಂತ ಮಹಾಪುರುಷ 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ MLA ಮತ್ತು MLCಗಳನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೋಹನ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Iron Man of India, Home Minister of Government of India and Cooperation Minister of Government of India, scrapping of 370, Article 370. Within no time, he took the decision. He placed a resolution in the They were denied the citizenship. That was the tragedy which was addressed in a very strong way, enabling them to become the citizens of this country. Amit Bhai has shown the entire world. ಕಳಿಸಿ ಸಾಲು ಹೊರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಸೂರು ಪೇಟವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಸುರಿ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. And the cooperative section also has been taken up by Government of India and it is come under the Government of India, and we can see you are the first cooperation minister of the India. We congratulate. Along with all these things, Amit Bhai has defined the political narrative of our country and is instrumental. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ Following the smart policing during the DGP and the IGP conference held in the year 2014,
in the presence of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. ಇದೀಗ ರೀಜನಲ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು. The launch of RFSL Ballari comes. ಇವತ್ತು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2-3 ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು PG ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಣಿತರಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧ ಮಾಡಲು ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ. KGಯಿಂದ ಹಿಡಿದು PGವರೆಗೂ ಈ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಧ್ವನಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಯಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬೇಡ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ, ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದೆ, ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೃತ್ಯುಂಗ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೃತ್ಯುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. आज यहाँ यूनिवर्सिटी की औपचारिक शुरुआत हुई है। उस वक्त मैं कहना चाहता हूँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई। उसके उद्देश्य भारत को महान बनाने के, उसके उद्देश्य हमारे युवाओं को अपॉर्चुनिटी देने के हैं। इसके उद्देश्य हमारे युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का है जिस पर खड़ा होकर कर्नाटक और भारत का युवा विश्व के युवा के साथ विश्वास के साथ स्पर्धा कर कर अपना हिस्सा देश के विकास के लिए योगदान दे सके। और ये नई शिक्षा नीति को समग्र देश में सबसे पहले अगर किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे कर्नाटक राज्य ने स्वीकार किया है। इसलिए मैं कर्नाटक राज्य को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारी नई शिक्षा नीति के अंदर भारतीय संस्कृति की समझ को बढ़ावा देने पर जोर है। विश्व में भारत का जो विश्व को मार्गदर्शन करने का दायित्व है, इसके प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है और भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का मूल आधार भारत की स्थानीय भाषाएं हो, इस पर भी बल दिया गया है। और कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक टास्क फोर्स बनाकर समग्र देश के सामने एक उदाहरण दिया है। मित्रों, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हायर एजुकेशन के लिए ढेर सारे काम करे। मैं डिटेल में बात बताना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश में 6 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6 बनी है, IIM 7 बने हैं, IIT 7 बने हैं, एम्स 15 बने हैं, मेडिकल कॉलेज 209 नए मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, 320 नई यूनिवर्सिटी खुली है और 5709 नए कॉलेजेस खोलने का काम किया है। हायर एजुकेशन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारा काम किया है।
और ग्रामीण क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए आज लगभग 410 से ज्यादा ग्रामीण विश्वविद्यालय भी, यूनिवर्सिटी भी काम की। नॉर्थ ईस्ट निग्लेक्टेड था। नॉर्थ ईस्ट में 22 नए विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज खोले गए हैं। लद्दाख में देश का पहला सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और प्रोफेशनल युवाओं को मौका देने के लिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी, इस प्रकार की प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। युवा मित्रों, मैं आज आपको बताने आया, मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर देश का विकास कैसे हो, हर क्षेत्र के अंदर देश दुनिया में सबसे पहले कैसे पहुंचे, उसके लिए हमेशा चिंता की है, हमेशा कार्यक्रम बनाए हैं और कठोरता के साथ कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट किया। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, 2014 के पहले आप सभी को मालूम है कि देश के पर आए दिन पाक प्रेरित आतंकवादी हमला करते थे और देश की केंद्र सरकार का रिस्पांस नील होता था, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको जवाब देने का नरेंद्र मोदी। कई लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ा, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आज पूरी दुनिया जानती है भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, वरना कोई जवाब दिया। पहले दुनिया में अपनी सीमा और सेना के साथ छेड़खानी करने वालों को 2 ही देश जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल। आज वो 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी। कई सारे ऐसे मसले, धारा 370, 35 है, सीए, ये ढेर सारे मसलों को मोदी जी ने पलक झपकते ही संभाला। 5 अगस्त 2019 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। सभी लोग कहते थे कि धारा 370 को हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। और मित्रों, 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकड़ डालने की भी हिम्मत नहीं हुई। मित्रों, कंकड़ डालने की भी 370 को कश्मीर से हटाकर हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उद्योग के क्षेत्र में ढेर सारी पीआईएल स्कीम लाकर भारत को इंडस्ट्री का हब बनाने का काम किया। और मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनता है तो हमारे लिए 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 130 करोड़ का मार्केट हमारे देश में ही उपलब्ध है। और अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है तो इस देश के सबसे ज्यादा युवा दुनिया में अगर किसी देश में है, सबसे ज्यादा युवा दुनिया में अगर कोई देश है तो मेरा और आपका देश भारत है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ढेर सारे क्षेत्रों के अंदर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे R&D करना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो, चाहे बिजली को हर एक घर में पहुंचाना हो, हर एक घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना हो, अनेक क्षेत्रों के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की। और इसी के कारण आज देश की जनता का विश्वास बढ़ा है कि जब हमारे आजादी के 100 साल पूरे होंगे, ये देश दुनिया में भारत सर्वोच्च स्थान पर दिखाई पड़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। मित्रों, यहाँ पर एक फॉरेंसिक साइंस लैब का भी बेल्लारी का उद्घाटन किया गया।
क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के कंसेप्ट को कर्नाटक ने बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन किया है। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बगैर 2 सिद्धि कन्विक्शन का रेशियो बढ़ नहीं सकता। जब तक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन न हो, केस में प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पास साइंटिफिक एविडेंस न हो, कभी 2 सिद्धि नहीं हो सकती। आज बीट का एक नया कंसेप्ट भी, ई बीट का कंसेप्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जब ई बीट का कंसेप्ट पूरे कर्नाटक में लॉन्च हो जाएगा, पुलिस की सेवाओं को अनेक गुना स्पीड से गरीब आदमी तक पहुंचाने का फायदा मिलेगा। मैंने इसके चमत्कारिक परिणाम चंडीगढ़ के अंदर देखे और मुझे भरोसा है कर्नाटक पुलिस के डीजीपी पर और हमारे गृह मंत्री पर कि ई बीट को हर बीट तक पहुंचाकर पर्याप्त ट्रेनिंग कर लोगों की सुविधा बढ़ाएंगे। आज में जो यहाँ पर विद्यार्थी उपस्थित है, विद्यार्थिनी है, युवा भाई बहन है, वो सभी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये नृतुंगा यूनिवर्सिटी बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल करे, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।